تو اوپر کمپیوٹر لیب بنی ہوئی ہیں. ابھی 1 month اگو ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہمیں 3 کمپیوٹر بھی دیے ہیں جی. تو وہ بھی بالکل اسی طرح بند ہے. واش روم کا مسئلہ اس میں تھوڑا وہ میں کریٹیکل سمجھتا ہوں. اس میں ہائیجینک اتنا نہیں ہے. اب انٹرنیٹ کی فیسلٹی تو ہمیں چاہیے, تو وہ بالکل بھی یہاں پر نہیں ہے. اگر ہم اپنا انٹرنیٹ آن بھی کرتے ہیں تو اس کے اتنے اچھے سگنل نہیں آتے. تقریباً میں 20-25 سال سے ادھر آتا ہوں. ماحول بہت اچھے ہیں, اچھے اسٹاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آج آپ کی رپورٹر جیا خان موجود ہے ایک ایسی لائبریری میں جو کہ ایبٹ آباد کی نہ صرف شان ہے بلکہ اس کی آن بھی ہے. جناب, یہاں پر کتابوں کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے اور جہاں پر بیٹھ کر پڑھنے والے ایک عجب قسم کا ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں. جی جناب, میں بات کر رہی ہوں مولانا اسحاق لائبریری کی, جو کہ جلال بابا آڈیٹوریم میں موجود ہے. یہ پبلک لائبریری ہے اور یہاں پر ہر دن صبح 8 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے, جہاں پر مختلف محکموں سے اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ رخ کرتے ہیں. آج ہم جانیں گے کہ یہاں پر بیٹھ کر تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ کن کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ اس ٹائم موجود ہیں عبداللہ, اور ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ لائبریری کا ایٹماسفیئر کو وہ کیسا پاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اگر امینڈمنٹس میں سے کیا چیزیں ایڈ کر دی جائیں تو لائبریری کے ایٹماسفیئر میں مزید تبدیلی آ سکتی ہے اور بہتری آ سکتی ہے. السلام علیکم عبداللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک. عبداللہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر اسٹڈی کے لیے کب سے آ رہے ہیں؟ تقریباً 3 years ہو گئے میں ادھر ریگولر آ رہا ہوں. ٹھیک ہے عبداللہ, 3 years میں آپ نے لائبریری کا ایٹماسفیئر اس کو کیسا پاتے ہیں؟ باقی تو ایٹماسفیئر بہت اچھا ہے, لیکن اگر واش رومز کی بات کی جائے تو وہ زیادہ تر گندے ہی رہتے ہیں, تو اس کا ایک مسئلہ ہے. لائک واش روم کی ہائیجین کی بات کریں آپ, کے اس کی صفائی پراپرلی نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے عبداللہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مٹیریل آپ کو آپ کی تھیسس پڑھائی یا اسٹڈی کے لیے چاہیے ہوتا ہے, کیا وہ لائبریری میں اویلیبل ہے؟ نہیں, بالکل بھی اویلیبل نہیں ہے. اب انٹرنیٹ کی فیسلٹی تو ہمیں چاہیے, تو وہ بالکل بھی یہاں پر نہیں ہے. اگر ہم اپنا انٹرنیٹ آن بھی کرتے ہیں تو اس کے اتنے اچھے سگنل نہیں آتے. ایک یہ پرابلم ہے, اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ بہت سے بچے اس طرح کہ وہ لیپ ٹاپ وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو اوپر کمپیوٹر لیب بنی ہوئی ہیں. ابھی 1 month اگو ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہمیں 3 کمپیوٹر بھی دیے ہیں جی. تو وہ بھی بالکل اسی طرح بند ہے. تو وہ بھی کمپیوٹر لیب بھی ہمارے لیے, میرے 3 years یہاں پر ہو گئے ہیں, وہ نہیں آن ہوا. اچھا, آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو اویلیبل کروائی گئی تھی ان کی سروسز کو آپ کے لیے ایکٹیو کیا جائے؟ جی بالکل ایکٹیو کیا جائے. مطلب مجھے تو مسئلہ نہیں, میرے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہے, لیکن بہت سے بچے ادھر ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے یہ چیزیں, تو ان کو تو یہ چیزیں چاہیے ہوں گی. ٹھیک ہو گیا عبداللہ. اور مجھے یہ بتائیے گا عبداللہ کہ یہاں پر جو بیسک بکس ہیں آپ کی اسٹڈی کے حوالے سے آپ اسٹڈی کرتے ہیں, یا اوور آل بکس میں سب بکس تک آپ کو ایکسیس ہوتی ہے؟ کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا تو نہیں ہے جو ریلیونٹ ہو صرف کہ یہاں سے آپ نے لینی ہے یا نہیں لینی؟ نہیں, بکس تو سب اویلیبل ہیں یہاں پر, لیکن مطلب لیٹسٹ بک تو ادھر کوئی بھی نہیں ہے اس طرح کی جو ایک ہمارے لیے بہترین ہو. مطلب پرانی بکس ہیں, اولڈ ہیں, اور ہمارے اتنے کام کی نہیں ہیں. تو ابھی کوئک میسج آپ کیا دینا چاہتے ہیں کہ لائک یہ وائی فائی کے علاوہ کوئی ایسی فیسلٹی, وائی فائی تو ہے ہی ہے انکلوڈیڈ ہے, کوئی ایسی فیسلٹی ویل کر دی جائے جو اس کی شارپنیس میں اضافہ کر دے؟ واش روم یوز کرنے کے قابل ہو جائیں, یہی ہمارے لیے کافی ہے. اور ایک بچوں کے لیے جو کمپیوٹر لیب ہے وہ اوپن ہو جائے. باقی آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت پڑتی رہتی ہے انسان کو, تو ویسے تو مسئلے ہمارے سنے جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس پر عمل بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے عبداللہ, ہم سے بات کر رہے تھے اور یہ چاہتے ہیں کہ مسئلے جہاں تک سنے جاتے ہیں تو پھر ان پر عمل درآمد کروا دیا جائے یا کر لیا جائے, تاکہ اس سے لائبریری کی جو سچویشن ہے اس میں مزید بیٹرمنٹ آ جائے.
नाज़रीन, मेरे साथ एक और यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद हैं, उस्मान शाह इनका नाम है। इनसे जानते हैं कि वो कुछ लैपटॉप पे भी कर रहे थे और अगेन वही क्वेश्चन है मेरा दोबारा, उस्मान से भी मैं यही पूछूंगी, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि वो लाइब्रेरी में अगर कोई बेटरमेंट है तो क्या चाहते हैं, और इसके अलावा जो मटेरियल है या जैसे यहाँ पर उनको वाइब्स आती हैं, इसके रिलेटेड हम इनसे क्वेश्चन करेंगे। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? उस्मान, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा कि अभी आप ये कुछ लैपटॉप वगैरह में कर रहे थे, कोई कंप्लेन ऐसी जो लाइब्रेरी से रिलेटेड हो आपको, कि मैं देख रही थी कि बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ पर गुड्स होते हैं वहाँ पर बैड्स भी होते हैं, तो क्या समझते हैं आप, क्या इक्विपमेंट ऐसा इक्विप्ड किया जाए कि लाइब्रेरी मज़ीद बेटर हो सके? जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा है, हमको स्टडी का मौका मिलता है, मतलब लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे है कि उनको ठीक किया जाए तो बहुत अच्छा होगा ना। वॉशरूम्स का मसला इसमें थोड़ा वो मैं क्रिटिकल समझता हूँ। इसमें हाइजीनिक इतना नहीं है, हैंड वाश वगैरह ये सब कुछ नहीं है, और वॉशरूम अक्सर मतलब वो ख़राब हैं, होते हैं कभी कभी, और इसको बढ़ाया जाए या फिर इसकी सफाई का ख़ास ख्याल किया जाए। और दूसरी बात यह है कि इसमें वाईफाई का मसला है, लाइब्रेरी में वाईफाई नहीं है, अगर वाईफाई भी लग जाए तो बहुत आसानी होगी। उस्मान, क्या आप लोगों ने वाईफाई के लिए अपनी कोई एप्लीकेशन वगैरह दी जी और उस पर अमल नहीं हुआ? नहीं, अभी स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशंस दिए हैं, तो डीसी साहब तक शायद गए हैं एप्लीकेशंस, लेकिन अभी तक को उसका रिस्पांस नहीं आया, और इतने वर्किंग डेज लग जाएंगे। ठीक है। लाइब्रेरी में जो मटेरियल मौजूद है, क्या वो आप समझते हैं कि इक्विप्ड है? बुक्स वगैरह, बुक्स तो बढ़िया है, सब सारे अच्छे बुक्स हैं। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं जिसको जनरल स्टडी कर रहे हैं वो लोग, तो वो उनके लिए हेल्पफुल है, लेकिन हम तो वैसे अपनी स्टडी के लिए आते ठीक है। और स्टाफ कैसा है लाइब्रेरी का? हैं। स्टाफ बड़ा हम्बल है, स्टाफ से कोई रिक्वेस्ट वो नहीं है, इशू, कोई कंप्लेन नहीं वो है? हेल्पफुल है। ठीक है। बाकी उस्मान, ओवरऑल ये कह रहे थे कि अगर लाइब्रेरी की हाइजीनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वॉशरूम्स पे अगर इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए और सही, या उनसे कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? जी उस्मान। जैसे कि मैं सीए कर रहा हूँ, सही है, सीए के जो जितने भी लाइब्रेरी है ऑल ओवर पाकिस्तान, यहाँ पे एबटाबाद में तो नहीं है, लेकिन ऑल ओवर पाकिस्तान में जितने के वो उनके लाइब्रेरीज हैं वो बहुत हाइजीनिक है, उसमें हैंड वॉश और टिशू वगैरह, एसी मेसी वाईफाई सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं स्टाफ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पब्लिक जो स्टूडेंट्स हैं जिनके कोई उनके ख़ास लाइब्रेरीज नहीं है, तो ये पब्लिक लाइब्रेरी अगर उनके लिए अच्छा बनाया जाए, तो हम तो सिर्फ सीज़न के लिए एबटाबाद आते हैं ना, यहाँ पे तो गुजार लेते हैं, लेकिन यहाँ जो लोकल लोग हैं, हाँ, स्टूडेंट्स के लिए हाँ प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू सो मच उस्मान। हमसे बात करें तो यही कह रहे थे कि जर्नल इक्विपमेंट्स अगर अवेलेबल करवा दिए जाएँ तो लाइब्रेरी की खूबसूरती जहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है उसको चार चांद लग जाएंगे। मैं इस टाइम मौजूद हूँ अखबार के सेक्शन में, यहाँ पर न्यूज़पेपर रीडिंग की जाती है, और हमारे जितने लोग चाहे वो रिटायर्ड हों या किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, यहाँ पर आते हैं और अखबार की जो है स्टडी की जाती है। सब न्यूज़पेपर यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। मैं इनसे बात करती हूँ। मेरे साथ बाबर मौजूद हैं। बाबर साहब, इनके वालिद साहब ठेकेदारी के महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं और ये उनके साथ ही होते हैं, लेकिन अपनी मसरूफियात के बारे में हमें बताएंगे और इनसे बातचीत करते हैं कि जब वो लाइब्रेरी आते हैं स्पेशली यहाँ का जो माहौल है या एटमॉस्फेयर है उसको कैसा पाते हैं, और साथ साथ में हम इनसे ये पूछेंगे कि जो सिटिंग वाइब्स हैं जब ये यहाँ से जाते हैं तो किस तरह की वाइब्स लेकर जाते हैं और उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाबर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, आप ठीक? शुक्र अल्लाह पाक का, थैंक यू। मुझे ये बताइएगा बाबर साहब कि ये स्पेशली न्यूज़पेपर आपके सामने नवाए वक्त खुला हुआ देख रही हूँ, ख़बरों से खासी दिलचस्पी लगती है आपको। अखबार का तो टाइम जाता जा रहा है, फिर भी इससे मुझे लगता है कि हमेशा जब हम टच रहते हैं, ये सकाफ़त रहनी चाहिए ना हमारे लोगों में। जी रहनी चाहिए। ये बस बहुत से लोग इधर आते हैं, बैठते हैं, न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं और चले जाते हैं। मुझे तकरीबन मैं 20-25 साल से इधर आता हूँ। अच्छा। माहौल बहुत अच्छा है, अच्छा स्टाफ है, अच्छा है, इनसे मिलते हैं, टाइम पे हमें अखबार मिलती है, पढ़ते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, 25 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। बाबर, आपने इन 25 सालों में क्या महसूस किया है? लाइब्रेरी का एटमॉस्फेयर कैसा समझते हैं? इस 25 साल में ये किया जी कि बहुत से इधर स्टूडेंट आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, अपना फारुक टाइम में यहाँ पे बैठ के अपनी स्टडी करते हैं,
اور यहाँ کے جو लाइब्रेरियन साहब हैं बहुत ही अच्छे हैं, और जो इनकी मैडम है वो जो बहुत ही अच्छी है, वो खुद चक्कर लगाती हैं, किसी चीज़ का मसला हो उसके बारे में पूछती हैं, फिर उसको हल करती हैं. मुझे बताइएगा कि कितने वक्त से आना हो रहा है यहाँ पर और लाइब्रेरी के माहौल को कैसा पाते हैं? जी 10-15 साल हो गए आते हुए. तो इन 15 सालों में क्या समझते हैं? पहले दिन जब आए थे और अब तो मुझे लगता है मोर देन अ फैमिली हो गए जैसे, हाँ तो क्या महसूस करते हैं? जी बहुत अच्छा है, मतलब इधर का तरीकाकार और लोगों का, तो स्टाफ अच्छा है आपके कहने का मकसद है, और जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो मिलती है यहाँ. जी. बहुत शुक्रिया, हमसे बातचीत कर रहे थे और ये बता रहे थे कि ये जो सेक्शन है बज़ाहिर देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन यहाँ पर बैठ के पढ़ने वाले 25 सालों से अगर इस लाइब्रेरी का रुख कर रहे हैं तो वाकई लाइब्रेरी में कोई बात होगी. जिया खान, अपने रिपोर्टर को दीजिए इजाज़त. अल्लाह निगहबान.